Hello all. Today we will discuss about torsion. If a moment is applied in the plane perpendicular to the longitudinal axis of beam or shaft, it produces torsion or twisting moment. We will see some formula related to torsion. Torsional formula is Tmax upon J equal to tau upon R equal to G theta upon L, in which J is polar moment of inertia. For solid shaft, its formula is pi by 32 d raised to 4. And for hollow shaft, it is pi by 32 outer d raised to 4 minus inner d raised to 4. D is external diameter, small d is internal diameter. If in the problem thickness is given, then you may calculate inner diameter is with the formula d minus twice of t. अगर थिकनेस दिया रहे प्रॉब्लम में तो आउटर डी माइनस टू टी से हम इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करेंगे. थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट in radian. If it is mentioned in degree, then multiply it by pi by 180. अगर 30 डिग्री दिया है प्रॉब्लम में तो 30 into pi by 180 it becomes pi by 6. Sorry. Tau is shear stress. Its unit should be Newton per mm square or MPa. Both are same. If it is given in GPa, then multiply it by 10 raised to 3. Length of shaft should be in mm, and modulus of rigidity is also unit of modulus of rigidity should be MPa. If it is in GPa, again multiply it by 10 raised to 3, and Tmax is maximum torque. With the power formula is 2 pi n T mean by 60. If n in RPM, P in watt and T mean इज इन न्यूटन मीटर. यहाँ जो टी होता है यूनिट न्यूटन एमएम में होता है, यहाँ टी न्यूटन मीटर में होता है. यहाँ से अगर हमने टी कैलकुलेट किया तो मल्टीप्लाई करना है 10 raised to 3 से. लेकिन अगर एन इन आरपीएस और हर्ज, देन पावर फॉर्मूला इज 2 पाई एन टी मीन. तभी डिफरेंट प्रॉब्लम इस फॉर्मूला पे देखेंगे हम. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज a shaft of hollow circular section has outer diameter 120 mm and inner diameter is 100 mm. First of all, write given data everywhere in each and every problem. Outer diameter capital D is 120 mm and inner diameter small d is 100 mm. Permissible shear stress tau is 95 MPa. Tau is 95 MPa. And angle of twist theta is 3.6 degree. Again it is in degree, multiply it by pi by 180, it becomes 0.0628 radian. And length of shaft L is 3 meter, means 3000 mm. और हर एक प्रॉब्लम में ये लिखना है एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इज दिस वन, shear stress sorry, tau is this one, outer diameter d this one, inner diameter small d this one. मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हर एक प्रॉब्लम में ये लिखना है ओ डी आई डी. केवल नोटेशन से नहीं होगा, क्लियर मेंशन करना है हमें. एंड इन दिस प्रॉब्लम maximum torque is 30% excess of mean torque. Means what? T max is 1.3 of T mean. T max is 1.3 of T mean. R n is 2 n is 2 hertz. Then determine the maximum power transmitted by shaft. G is 80 GPa. Modulus of rigidity G is 80 GPa. If it is in GPa, multiply by 10 raised to 3, it becomes in MPa. Then polar moment of inertia J can be calculated for hollow shaft is pi by 32 outer diameter raised to 4 minus inner diameter raised to 4. Pi by 32 OD is 120 raised to 4 minus 100 raised to 4. It becomes 10.54 into 10 raised to 6 mm raised to 4.
torque based on if tau and theta both are given, then find the torque on the both criteria, torque based on shear stress and torque based on angle of twist. Torque based on shear stress, formula for this is T by J, T max by J upon tau by R. R is outer diameter by 2. T max is T max becomes tau multiplied by J divided by R. Tau is 95. J value is 10.54 into 10 raised to 6. And R value is outer diameter by 2, means 120 by 2. So T max 16.69 multiplied by 10 raised to 6 Newton mm. In Newton meter it becomes 16.69 into 10 raised to 3 Newton meter. Now again you have to calculate torque based on shear stress criteria. T by J or T max by J equal to G theta by L. तो T max becomes G theta J divided by L. J इधर आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में. तो G की वैल्यू होगी गिवन है प्रॉब्लम में G की वैल्यू 80 into 10 raised to 3. Your theta in radian is 0.0628. Value of J is 10.54 multiplied by 10 raised to 6. And length of shaft is 3000. After calculation, you got T max 17.65 multiplied by 10 raised to 6 Newton mm. पावर कैलकुलेट करना है इसलिए इसको न्यूटन mm को न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर रहे, 3 से हम कम करेंगे, इट बिकम्स इन न्यूटन मीटर. नाउ आउट ऑफ बोथ क्राइटेरिया नंबर 1 एंड क्राइटेरिया नंबर 2, वट एवर योर लीस्ट टॉर्क यू आर गेटिंग, यू हैव टू कंसिडर इट. जो भी कम वाली वैल्यू है 16.69 और 17.65, ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क, सेफ टॉर्क जो भी कर सकते वो होगा. तो जो T max हमें लेना है आउट ऑफ बोथ क्राइटेरिया, वट एवर यू आर गेटिंग लिस्ट वैल्यू ऑफ T, it will be considered for the further calculation, and it is 16.69 multiplied by 10 raised to 3 Newton meter. ये हमारा T max आ गया. अब यहाँ से हम पावर कैलकुलेट कर T max आया. अभी रिलेशन हमारे पास है T max इक्वल टू 1.3 T मीन. देन T मीन क्या आ जाएगा हमारा जब कैलकुलेट करेंगे तो T max डिवाइडेड बाय 1.3. तो T max is 16.69 into 10 raised to 3. Then T mean becomes 16.69 into 10 raised to 3 divided by 1.3. Divided by 1.3. Your value T mean is 12.84 into 10 raised to 3 Newton meter. Now power formula is 2 pi NT mean. तो 2 पाई एन इज 2 हर्ज. हर्ज में आए तो 2 पाई एन टी मीन ही होता है. आरपीएम में रहे तो 2 पाई एन टी बाई 60 होता है. तो 2 इंटू 12.84 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू 3. योर आंसर इज इन वैट 161.35 इंटू 10 रेज टू 3 वैट और 161.35 किलो वैट इज योर फाइनल आंसर. Now come to next question. Determine the diameter. Second question. Determine the diameter of a solid shaft. पहले वाले प्रॉब्लम में होलो शाफ्ट था, यहाँ पे सॉलिड शाफ्ट है. Which will transmit power is 300 kilowatt. 300 kilowatt means 300 multiplied by 10 raised to 3 watt.
RPM is 400. The maximum shear stress should not be exceed 40 Newton per mm square. Means maximum value you are considering 40 जो भी नॉट ग्रेटर देन 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर मीन्स 40 लेके सॉल्व करना है हमें. एंड ट्विस्ट शुड नॉट बी मोर देन 1 degree means what? 1 into pi by 180, your theta becomes 0.017 radian. Modulus of rigidity G is 1 into 10 raised to 5 Newton sorry 1 into 10 raised to 5 Newton per mm square. Modulus of rigidity. Now length of shaft is 3 meter. 3 meter means 3000 mm. 3000 mm. अभी जब भी पावर दिया है प्रॉब्लम में तो यहाँ से टी कैलकुलेट कर, और रिलेशन में अगर मैक्सिमम टॉर्क नॉट एक्सीड्स 20% 30%, अगर प्रॉब्लम में लिखा नहीं है तो हम टी लेके ही दोनों में सॉल्व करते हैं. पावर में भी टी लिखो और टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल में भी टी ही लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मीन एवरेज का रिलेशन गिवन नहीं है प्रॉब्लम में. तो वही टी लेना है हमें, जो भी टी पावर में आएगा वही टॉर्सनल फार्मूला में भी लेना है. तो पावर फार्मूला is 2 pi nt mean and n is in rpm, that's why divided by 60. तो टी मीन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप टी लेके सॉल्व कर सकते हो क्योंकि मैक्सिमम और एवरेज और मीन में रिलेशन गिवन नहीं है प्रॉब्लम में. तो टी इज इक्वल टू 60p डिवाइडेड बाई 2 pi n. 60 power formula is 300 into 10 raised to 3 2 pi and value of n is 400. Then your torque becomes 7.16 into 10 raised to 3 न्यूटन मीटर. यहाँ से जो भी आएगा वो न्यूटन मीटर में आएगा. 3 से एक्सीड करेंगे, 3 से एक्सटेंड 3 + 3 इट बिकम्स 10 raised to 6 न्यूटन mm. टॉर्क आ गया हमारा ये वैल्यू. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? डायमीटर कैलकुलेट करना है. और प्रॉब्लम में थीटा भी दिया है और तो पिछले प्रॉब्लम में भी टाउ थीटा दिया था, तो दोनों से हमने टॉर्क निकाला था और जो मिनिमम टॉर्क था वो हमारा मैक्सिमम या सेफ टॉर्क था. लेकिन डायमीटर के केस में जो बड़ा वाला वैल्यू रहेगा वो हमारा सेफ डायमीटर रहेगा. तो टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाय आर. देन T upon formula for J is pi by 32 d raised to 4 tau upon d by 2. 32 ऊपर चला जाएगा, 32 t by pi d 4 equal to 2 tau upon d. Then 1 d cancel out. 32 t by pi 2 pi tau is equal to d cube. Then d is equal to 32 t upon 2 pi tau रेज टू 1/3. अब 32 इंटू टॉर्क की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7.16 इंटू 10 रेज टू 6 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू टाउ की वैल्यू क्या है शेयर स्ट्रेस की 40 रेज टू 1/3 करेंगे. यहाँ से जो डी की वैल्यू होगी 97.02 mm आएगी फर्स्ट क्राइटेरिया से. सेकंड क्राइटेरिया टी बाई जे डायमीटर बेस्ड ऑन शेयर स्ट्रेस हो गया. अब डायमीटर बेस्ड ऑन एंगल ऑफ ट्विस्ट. डायमीटर बेस्ड ऑन एंगल ऑफ ट्विस्ट. तो टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल. तो टी अपॉन पाई बाई 32 टी रेज टू 4 जी थीटा अपॉन एल. 32 ऊपर आएगा, 32 टी बाई पाई डी 4 इक्वल टू जी थीटा बाई L. Then d4 is equal to 32 TL divided by pi g theta. Then d becomes 32 TL by pi g theta raised to 1/4. If you will substitute all value 32, torque value is 7.16 into 10 raised to 6. Length value is
3000 divided by pi. Modulus of rigidity is 1 into 10 raised to 5, and angle of twist is 0.017 raised to 1 by 4. Your diameter is 106.5 mm. Then whatever you are getting higher value out of equation number 1 and equation number 2, in equation number u आपको मिला था 97.02 mm. ये था diameter based on shear stress criteria. और ये सेकंड वाला है हमारा डायमीटर बेस्ड ऑन एंगल ऑफ ट्विस्ट. तो दोनों में हायर वैल्यू जो है हमारा 106.55 mm है. दैट्स वाई सेफ डायमीटर और मैक्सिमम डायमीटर और सेफ डायमीटर इज 106.55 mm इज योर आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 होलो स्टील रॉड, अगेन होलो दिया है, होलो स्टील रॉड 300 mm long, means length is given 300 mm, is to be used as torsional spring. The ratio of inside to outside diameter small d by capital D. Ratio of inside to outside diameter is 1 by 2, means capital D equal to twice of inner diameter, or inner diameter equal to d by 2, it becomes 0.5 into d. D is small d is inside diameter, capital D is outside diameter. You have to write it, you have to mention it. लिखना है हमें क्या, कौन सा नोटेशन क्या है. टॉर्क इज T इक्वल टू 200 न्यूटन मीटर. यहाँ क्या दिया है प्रॉब्लम में, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग मीन्स T अपॉन थीटा, ये गिवन है डायरेक्टली. हमें हम सेपरेट भी कर सकते. 200 न्यूटन मीटर इज टॉर्क, मल्टीप्लाई इट बाय 10 raised to 3, it becomes in Newton mm, and theta is 1 degree, per degree means 1 degree, multiply it by pi by 180, it becomes 0.017 radian. Now modulus of rigidity is also given 8 multiplied by 10 raised to 4 Newton per mm square दिया है हमें यहाँ पे. तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई बाई 32 outer diameter raised to 4 minus inner diameter raised to 4, means pi by 32 outer d raised to 4 minus 0.5 d raised to 4, take d raised to 4 as common, 1 minus 0.5 raised to 4, means क्या आ जाएगा ये, pi by 32 1 minus 0.5 raised to 4 d raised to 4. After solving you will get 0.092 d raised to 4. Now यहाँ पे क्या ओनली थीटा दिया है, शेयर स्ट्रेस प्रॉब्लम में नहीं दिया है. तो T बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल. टॉर्क इज 200 इंटू 10 raised to 3, जे वैल्यू इज 0.092 d raised to 4, value of g is 8 into 10 raised to 4, value of theta is 0.017, और लेंथ ऑफ शाफ्ट इज 300. देन 200 इंटू 10 raised to 3, 300 ये ऊपर चला जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, 0.092 इंटू 8 इंटू 10 raised to 4 इंटू 0.017 equal to d raised to 4. Then you will get d value as 200 into 10 raised to 3 into 300 divided by 0.092 multiply by 8 multiply by 10 raised to 4 multiply by 0.017 raised to 1 by 4. Your d value becomes, outer d value becomes, outer diameter 26.31 mm, small d is 0.5 d, 0.5 into 26.31, your small d becomes 13.15 mm.
नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तो एक ही क्राइटेरिया था तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अगेन होलो शाफ्ट विथ डायमीटर रेशियो इज गिवन टू यू। क्या दिया है हमें? डायमीटर रेशियो दिया है स्मॉल डी बाई कैपिटल डी 3/5, देन स्मॉल डी 0.6 इंटू डी, ट्रांसमिट 450 किलोवाट पावर, 450 किलोवाट means 450 multiplied by 10 raised to 3 watt, and RPM is 120 with a uniform twisting moment, shearing stress in the shaft not to exceed मीन्स टाउ जो है 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर से। इस 60 लेके सॉल्व करना है। ट्विस्ट इन अ लेंथ ऑफ 2.5 मीटर, लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज 2.5 मीटर मीन्स 2500 mm। मीटर को mm में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। एंड थीटा इज अगेन 1 डिग्री, मस्ट नॉट एक्सीड 1 डिग्री मीन्स व्हाट 1 इंटू पाई बाय 180, इट इज 0.017 रेडियन। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सटर्नल डायमीटर एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज गिवन टू यू 8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। अभी यहाँ पे अगेन थीटा और टाउ दिया है प्रॉब्लम में और हमें डायमीटर पूछा है, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। फिर दोनों क्राइटेरिया से डायमीटर कैलकुलेट करेंगे और जो भी लिस्ट हायर वैल्यू रहेगा डायमीटर के केस में वो हमारा आंसर होगा। टॉर्क के केस में लिस्ट वैल्यू और जे के केस में हायर वैल्यू, ये डी के केस में हायर वैल्यू। तो π/32 जे पहले कैलकुलेट कर लो। π/32 outer diameter raised to 4 minus 0.6 d raised to 4, then π/32 d raised to 4 common, it becomes 1 minus 0.6 raised to 4. Now π/32 1 minus 0.6 raised to 4 multiply by d raised to 4, it becomes 0.085 d raised to 4 is j value. Now power is given to you, then from the relation of power and torque फर्स्ट कैलकुलेट टी वैल्यू। और यहाँ भी नहीं लिखा है टॉर्क और मीन टॉर्क में कोई रिलेशन, तो आप टी लेके सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को आगे। तो पावर से पहले टॉर्क कैलकुलेट करेंगे 2π/N/60। यहाँ से टॉर्क आएगा 60p/2πN। एक मिनट, यहाँ से जो टॉर्क की वैल्यू होगी T इक्वल टू इट बिकम 60p डिवाइडेड बाई 2πN, 60 and power is 450 multiplied by 10⁻³ divided by 2 pi and n value is 120 rpm. Then your torque 35.80 multiplied by 10⁻⁶ Newton mm, Newton meter, 10⁻³ Newton meter. You are getting 10⁻³ Newton meter. Then if you have to convert in mm, it is 10⁻⁶ Newton mm. Now you have to calculate diameter based on shear stress first. Diameter based on shear stress. तो क्या है shear stress के लिए फॉर्मूला, टॉर्सनल फॉर्मूला T/J इक्वल टू टाउ बाय R। तो T का जो वैल्यू है 35.80 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, J का जो वैल्यू है 0.085 d⁻⁴, टाउ अपॉन d/2, देन 2 ऊपर चला जाएगा। टाउ की वैल्यू पुट करेंगे, नहीं किया मैंने पुट, सॉरी। टाउ की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, जो टाउ वैल्यू इज 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 60, देन 35.80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ अपॉन 0.085 d⁻⁴, 60 into 2 divided by d, 1d cancel out, it becomes d cube equal to 35.80
multiply by 10 raised to 6 divided by 0.085 into 2 into 60 जो भी आएगा, एक डी तो कैंसिल हुआ यहाँ पे, एक मिनट। तो डी की जो वैल्यू होगी, 35.80 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 0.085 into 2 into 60 raised to 1/3. Your D value 151.97 mm. This is first criteria. टाउ थीटा दिया रहे तो दोनों क्राइटेरिया से कैलकुलेट करना है। डायमीटर बेस्ड ऑन एंगल ऑफ ट्विस्ट, डायमीटर बेस्ड ऑन एंगल ऑफ ट्विस्ट, देन T by J इक्वल टू G थीटा बाय L, G थीटा बाय L। टॉर्क कैलकुलेट कर, टॉर्क की वैल्यू दी हुई है, टॉर्क की वैल्यू है हमारे पास 35.80 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 6, वैल्यू ऑफ J इज 0.085 D raised to 4, value of G is 8 into 10 raised to 4, value of theta is 0.017 divided by length of shaft is 2500, then 35.80 into 10 raised to 6, 2500 ऊपर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, 0.085 नीचे 8 into 10 raised to 4 into 0.017 equal to D raised to 4, then D becomes 35.80 multiply by 10 raised to 6 multiply by 2500, 0.085, 8 into 10 raised to 4 into 0.017 raised to 1/4. Your diameter from here is 166.80 mm. Out of these two, 151 and 166.80, higher value is 166.80 mm, then external diameter of shaft is 166.80 mm. और अगर इनर डायमीटर कैलकुलेट करना रहता तो इनर का रिलेशन पता है हमें 0.6 इंटू डी, इनर का रिलेशन मालूम है 0.6 इंटू डी, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर पूछा है तो ओनली एक्सटर्नल डायमीटर ही कैलकुलेट किया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, स्टील शाफ्ट ऑफ 960 mm डायमीटर, एक ही डायमीटर दिया है, मीन्स सॉलिड शाफ्ट है, is required to transmit power of 240 kilowatt. Kilowatt means sorry, 10 raised to 3 watt. RPM is 240 and maximum torque is 40% greater, means 1.4 times of T mean. 40% greater means 1.4 times of T mean. यहाँ पे T max और T mean लेके चलना होगा, क्योंकि लिखा है प्रॉब्लम है 40% गेटर, इस तरह से अगर लिखा रहे 40% 50% तो ये रिलेशन T max और T mean सेपरेट लेके चलना है। तो पावर का फॉर्मूला 2 पाई एन टी मीन डिवाइडेड बाय 60। फ्रॉम हियर T mean can be evaluated by considering 60 in numerator on left hand side, 60 multiply by 240 into 10 raised to 3 divided by 2 pi, n की वैल्यू 240 है, टॉर्क की टी मीन की वैल्यू आ गई 9.54 इंटू 10 raised to 6 न्यूटन mm। टॉर्क टी मीन आने के बाद टी मैक्स है हमारा, न्यूटन मीटर में आएगा तो 10 raised to 3 से डायरेक्टली हमने एक्सटेंड किया, अगर ये कैलकुलेट करोगे तो 10 raised to 3 न्यूटन मीटर आएगा ये, तो 9.54 इंटू 10 raised to 6 न्यूटन mm। Now T max is 1.4 of T mean, then 1.4 multiply by
9.54 इंटू 10⁻⁶, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.35 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन एम एम। जे कैलकुलेट करेंगे, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/32 d⁻⁴। इस π/32 सॉलिड है, एक ही डायमीटर दिया है। अगर प्रॉब्लम में थिकनेस और डायमीटर दिया रहे तो कैपिटल डी और स्मॉल डी के लिए d-2t करना रहता है, ये है नहीं किसी प्रॉब्लम में। d⁻⁴, d वैल्यू 960⁻⁴, your j value becomes 8.34 into 10⁻10 mm⁻⁴। now T max upon j इक्वल टू टाउ बाय आर, टाउ की वैल्यू पूछी जा रही है, तो टाउ क्या आ जाएगा यहाँ पे, T max इंटू आर डिवाइडेड बाई जे। T max क्या है हमारा 13.35 इंटू 10⁻⁶, आर इज आउट, डायमीटर बाई 2, 960/2, एंड जे की वैल्यू है जे की वैल्यू है 8.34 इंटू 10⁻10। जे हमने कैलकुलेट किया यहाँ से, ये आ जाएगा हमारा 0.076 MPa। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वहाँ भी थीटा भी दिया रहता तो दोनों क्राइटेरिया पे हम टाउ कैलकुलेट करते। तो जैसे टॉर्क मिनिमम दोनों में से लोअर वैल्यू लेते हो, कम वाली वैल्यू लेते हो सेफ टॉर्क के लिए। अगर मैक्सिमम भी प्रॉब्लम में दिया रहे और टाउ थीटा रहे तो दोनों से टॉर्क निकालना है और कम वाला लेना है सेफ टॉर्क। लेकिन टाउ भी वैसे ही होता है, टाउ भी कम वाला, केवल डायमीटर ज़्यादा वाला वैल्यू कंसीडर करते हैं हम। अभी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, होलो शाफ्ट ट्रांसमिट्स 100 किलोवाट। गिवन डेटा लिखना जरूरी रहता है सबसे पहले। 100 किलोवाट मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ watt and RPM is 120. Allowable shear stress in the material is 50 Newton per mm square. Should not exceed, allowable means should not exceed. Shaft shall not twist more than 2 डिग्री। 2 इंटू डिग्री में है तो π/180 से आप मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 0.034 रेडियन। आफ्टर दिस रेशियो ऑफ इंटरनल टू एक्सटर्नल डायमीटर मीन्स स्मॉल डी, और ये लिखना है स्मॉल डी इक्वल टू इंटरनल डायमीटर, कैपिटल डी इक्वल टू एक्सटर्नल डायमीटर। तो स्मॉल डी बिकम 0.25 मल्टीप्लाई बाई डी एंड जी वैल्यू इज 80 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर means 80 multiply by 10⁻³ Newton per mm square. Then maximum torque 50% more than mean torque means what? T max is 1.15, 15% means 30 रहे तो 1.30, 40 रहे तो 1.40, 5% रहे तो 1.05, 15% है तो 1.15 of T mean. Then you have to calculate maximum external diameter of the shaft. तो सबसे पहले J कैलकुलेट कर लेते हैं हम। J की वैल्यू होगी π/32 आउटर डायमीटर d⁻⁴ माइनस इनर डायमीटर d⁻⁴, मीन्स π/32 आउटर d⁻⁴ माइनस 0.25 ऑफ आउटर डायमीटर d⁻⁴, मीन्स π/32 यहाँ से 1 माइनस 0.25 d⁻⁴ आ जाएगा और d⁻⁴ हम बाहर ले लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.098 d⁻⁴। जे आने के बाद T मैक्स इक्वल टू, ये तो दिया है 1.15 T मीन। पावर के फॉर्मूला में P का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 पाई NT मीन डिवाइडेड बाय 60, RPM में है तो डिवाइडेड बाय 60 लेना है। तो T मीन क्या आ जाएगा हमारा 60P डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो 60 पावर की वैल्यू है 100 इंटू 10⁻³, 2 पाई, N की वैल्यू है, RPM की वैल्यू है 120। योर T मीन वैल्यू बिकम्स 7.96 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, और न्यूटन mm में करना है तो 3 से और बढ़ा देंगे पावर, तो 10⁻⁶ न्यूटन
mm T mean. Now with the given relation कैलकुलेट टी मैक्स इक्वल टू क्या दिया है, टी मैक्स इक्वल टू 1.15 टी मीन, तो 1.15 एंड टी मीन वैल्यू इज 7.96 इंटू 10⁻⁶, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.15 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। ये आने के बाद टी मैक्स कैलकुलेट करने के बाद डायमीटर निकालना है, दोनों भी क्राइटेरिया ये लर्न याद रखेंगे अभी नेक्स्ट पेज के लिए, दोनों भी क्राइटेरिया पे डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो डायमीटर बेस्ड ऑन shear stress, diameter based on shear stress T by J equal to T max by J equal to tau by R। तो T max की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट किया था हमने प्रीवियस पेज में, 9.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय J की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई थी, 0.098 d⁻⁴, टाउ की वैल्यू 50 गिवन है प्रॉब्लम में, आर क्या आ जाएगा, आउटर डायमीटर बाई 2, 2 को अगर ऊपर लेते हो एक डी कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा 9.15 इंटू 10⁻⁶, 0.098, 50 नीचे आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये 2 जो ऊपर जाएगा वो इधर 50 के साथ आ जाएगा, इक्वल टू डी क्यू। तो डी इक्वल टू 9.15 इंटू 10⁻⁶ divided by 0.098 into 50 into 2 raised to 1 by 3. Your diameter 97.73 mm on the shear stress criteria, on the basis of shear stress criteria. Now you have to evaluate, you have to calculate, you have to find out diameter based on angle of twist. देन डायमीटर बेस्ड ऑन, जब भी टाउ थीटा दोनों दिया है तो दोनों पे कैलकुलेट करो, और जो डायमीटर की लार्जर वैल्यू होगी वो हमारा सेफ डायमीटर रहेगा, और टॉर्क और शियर स्ट्रेस में जो कम वाली वैल्यू होगी वो हमारा सेफ वैल्यू रहेगा। तो डायमीटर बेस्ड ऑन एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो डायमीटर बेस्ड ऑन एंगल ऑफ ट्विस्ट टी बाई जे इक्वल टू टी मैक्स बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो टी मैक्स है हमारा 9.15 इंटू 10⁻⁶, जे की वैल्यू कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर 0.098 d⁻⁴, जी वैल्यू इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वैल्यू इज 80 इंटू 10⁻�3, थीटा वैल्यू इज 0.034 एंड लेंथ वैल्यू इज 1000 mm। देन d⁻⁴ 9.15 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1000 upon 0.098 into 80 into 10⁻³ into 0.034, तो डायमीटर क्या आ जाएगा 9.15 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.098 इंटू 80 इंटू 10⁻³ इंटू 0.034 रेज टू 1/4, 4 है उधर पावर तो इधर 1/4 आ जाएगा। तो डायमीटर वैल्यू इज 97.73 mm, ये 76.54 mm। Out of both criteria, your larger value of D is 97.73 mm, then it is the safe value for this problem। Then small d relation है हमारे पास 0.25 into d, डायमीटर रेशियो दिया था, तो 0.25 इंटू 97.73 is equal to 24.43 mm is the inner diameter। Now come to next question। Come to next question, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन सिंपल है। The solid circular composite shaft ABC, there are two shafts AB and BC of a different diameter। ये फर्स्ट शाफ्ट है, ये सेकंड शाफ्ट है। तो फॉर BC it is small d equal to 40 mm and for AB
स्मॉल डी एक ही डी है, तो फॉर ए बी डायमीटर इज 60 mm, तो D1 D2। सेकंड J1 क्या आ जाएगा हमारा, π/32 इंटू D1 रेज टू 4 मीन्स 40 रेज टू 4, ये आ जाएगा हमारा 251.32, 251.32 इंटू 10 रेज टू 3 mm रेज टू 4। और J2 की वैल्यू हो जाएगी π/32 इंटू 60 रेज टू 4, 1.27 इंटू 10 रेज टू 6, 10 raised to 6 mm raised to 4. Now length of the shaft L1 1 meter means what, 1000 mm, and L2 for steel it is 1.5 meter means 1500 mm. G value for BC, BC means स्टील के लिए जो G वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, BC के लिए जो G की वैल्यू है वो 83 इंटू 10 रेज टू 3 MPa, GPa है तो MPa में कन्वर्ट करेंगे, 83 इंटू 10 रेज टू 3 1000, ठीक है। ये लेंथ ऑफ BC इट इज 1.5 मीटर, सॉरी एक मिनट, फॉर BC D1 इज 40, J1 becomes 251.32 इंटू 10 रेज टू 3, लेंथ ऑफ BC इज 1.5 मीटर, ये चेंज हो गया तो सॉरी टीचर, check it. Length of BC is L1 is 1.5 meter means 1500 mm ये होगा, और लेंथ ऑफ द AB इज 1 मीटर मीन्स 1000 mm, ये वाला लेंथ ऑफ सेकंड हो जाएगा। G है हमारा BC का, स्टील के लिए जो G की वैल्यू है वो 83 GPa, स्टील के लिए 83 GPa, 83 इंटू 10 रेज टू 3 करेक्ट है। और इसके लिए जो G है वो 35 GPa, 35 GPa means 35 into 10 raised to 3 MPa. Now सी टॉर्क, अभी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे साइन कन्वेंशन, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव, और फ्री एंड से स्टार्ट करना है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो BC पे जो टॉर्क होगा वो हमारा होगा टॉर्क वैल्यू 900 न्यूटन मीटर मीन्स 900 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन mm। लेकिन जब AB पे जाएंगे तो ये ऐड होता जाएगा फ्री एंड से, तो जब AB पे जाएंगे तो ये 900 तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा, और क्लॉकवाइज है ये 1400, ये निगेटिव हो जाएगा। फ्री एंड से ऐड करते जाना है फिक्स्ड एंड की तरफ, ये -1400 हो जाएगा, इट बिकम्स -500 न्यूटन मीटर मीन्स 500 -500 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन mm। तो थीटा का T बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ऑल ऑफ यू नो T बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल, देन थीटा बिकम्स TL बाई जी जे, जी उधर नीचे चला जाएगा, तो थीटा टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा बिकम्स TL बाई जी जे ऑफ BC प्लस TL बाई जी जे ऑफ AB। तो T की वैल्यू क्या है BC के लिए 900 इंटू 10 रेज टू 3, L की वैल्यू क्या है 1500, G की वैल्यू है 83 इंटू 10 रेज टू 3, और 251.32 इंटू 10 रेज टू 3, ये फर्स्ट BC की वैल्यू हो गई। अब AB के लिए क्या करेंगे हम, प्लस ऑफ -500 इंटू 10 रेज टू 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय G की वैल्यू 35 इंटू 10 रेज टू 3 एंड लेंथ, सॉरी J की वैल्यू 21.27 इंटू 10 रेज टू 6। You will get
थीटा वैल्यू इज 0.053 रेडियन ये आ जाएगा हमारा। तो ये ध्यान रखना है, फ्री एंड से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो फ्री एंड पे 900 था, जैसे ही हमने ए बी पे गए तो ये 900 और ये क्लॉकवाइज है तो -1400, तो ये हमारा -500 आ गया। तो ये सिंपल था प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा चेंज था बाकियों से। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपोजिट शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ कॉपर रॉड 20 mm डायमीटर। जब भी अगर एक ट्यूब के अंदर एक रॉड इंसर्टेड है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जब भी एक ट्यूब के अंदर एक रॉड इंसर्टेड है, मीन्स ये हमारा रॉड है और ये हमारा ट्यूब है। तो ट्यूब के अभी प्रॉब्लम में क्या दिया है, स्टील ट्यूब ऑफ 60 mm एक्सटर्नल डायमीटर, 60 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 20 अभी थिकनेस दिया है। देखो बोला था मैंने, अगर एक्सटर्नल डायमीटर दिया है तो और थिकनेस दिया है तो इंटरनल डायमीटर के लिए d-2t करते, 60 माइनस ट्वाइस ऑफ 20 इट बिकम्स 20 mm। और रॉड का भी जो स्टील रॉड का जो डायमीटर है वो भी हमारा 20 mm है। सॉरी, कॉपर रॉड का जो डायमीटर है वो हमारा 20 mm है। कॉपर डायमीटर भी 20 mm है। कॉपर रॉड का डायमीटर 20 mm है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट, हाँ अगेन क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर, ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर, ये गिवन है। तो सबसे पहले फॉर स्टील पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया JS क्या आ जाएगा, π/32 आउटर डायमीटर रेज टू 4 माइनस इनर डायमीटर रेज टू 4, ये आएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 6 mm रेज टू 4। फॉर कॉपर it becomes J copper equal to π/32 इंटू 20 रेज, सॉलिड रॉड कॉपर रॉड है ये, 15.70 इंटू 10 रेज टू 3 mm रेज टू 4। Now GS is given to you, GS equal to twice of G copper and LS is length of shaft length of steel tube is equal to length of copper rod in parallel combination, and again it is mentioned here if the shaft have equal length, तो LS equal to LCU लिया हमने, and welded to a plate at each end so that their twists are equal. Twist are equal means theta S equal to theta copper, and formula for theta S is TL TS LS PL by GJ, GS JS, T copper L copper, G copper and J copper। लेंथ इक्वल है तो LS L कॉपर को कट कर देंगे। TS GS is given to you twice of G copper and JS T copper G copper, GG कैंसिल हो जाएगा, दोनों का दोनों तरफ आ गया, तो TS becomes twice TCU, JS उधर ऊपर चला जाएगा, JS अपॉन J कॉपर, क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ J ऑफ स्टील हमने कैलकुलेट किया है 1.25 इंटू 10 रेज टू 6 डिवाइडेड बाय J ऑफ कॉपर it is 15.70 into 10 raised to 3 and here T copper. After calculation you will get T steel equal to 159.23 T of copper। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेपरेट टॉर्क जो रहेगा ट्यूब पे और आपके रॉड पे, वो दोनों सम ऑफ जो टॉर्क रहेगा वो टोटल गिवन के इक्वल रहेगा। और ये गिवन टॉर्क प्रॉब्लम में दिया है 1200 न्यूटन मीटर, टोटल टॉर्क दिया है प्रॉब्लम में 1200 सॉरी न्यूटन मीटर, मीन्स 1200 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन
mm आ जाएगा ये। तो जब यहाँ लिखोगे, एक मिनट, ts प्लस टी कॉपर it is equal to total torque 159.23 T कॉपर, रिलेशन आया पहले, इक्वल टू टोटल टॉर्क इज 1200 इंटू 10⁻3। अब 159.23 और 1 कितना हो जाएगा, 160.23 टी कॉपर इक्वल टू 1200 इंटू 10⁻3। तो टी कॉपर बिकम्स 1200 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 160.23। तो टी कॉपर की वैल्यू आ गई 7.489 इंटू 10⁻3 न्यूटन mm। टी कॉपर आने के बाद टी एस का रिलेशन हमारे पास है 159.23 टी ऑफ कॉपर। तो 159.23 इंटू 7.489 इंटू 10⁻3 it becomes 1.19 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। ये टी एस आ गया, टी कॉपर आ गया। अभी शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। फॉर स्टील टी एस बाई जे एस इक्वल टू टाउ एस बाय आर एस। टाउ एस इज टी एस आर एस बाई जे एस। टी एस की वैल्यू 1.19, आर एस की वैल्यू डी एस बाई 2, आउटर डायमीटर बाई 2, और आउटर डायमीटर क्या है स्टील का, 60/2 आ जाएगा। जे की वैल्यू स्टील की 1.25 इंटू 10⁻6। 1.25 into 10⁻6. You will get tau s value is 28.56 MPa. Now for copper, it becomes T copper upon J copper equal to tau copper upon R of copper. तो T की वैल्यू है हमारी कॉपर के 7.489 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 15.70 इंटू 10⁻3 इक्वल टू टाउ कॉपर इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉपर मीन्स रेडियस डायमीटर है कॉपर रॉड का 20, तो 20/2 टाउ कॉपर आ जाएगा 7.489 इंटू 10⁻3। ये 20/2 10 चला जाएगा इधर, 15.70 इंटू 10⁻3। योर टाउ वैल्यू बिकम्स 4.77 MPa। कॉपर के लिए 4.77, स्टील के लिए 28.56। Come to next question, question number 9. Determine the torque that can be applied to a solid shaft of 20 mm diameter. Solid shaft है, diameter given है 20 mm, without exceeding an allowable shearing stress of 65 Newton per mm square. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें 65 लेके सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो पहला तो ये क्वेश्चन है, यहाँ तक आप टॉर्क कैलकुलेट करो, उसके बाद का आगे का रीड करेंगे हम। तो जे एस सॉलिड शाफ्ट के लिए π/32, इसको हम डी एस बोल सकते हैं सॉलिड शाफ्ट का, π/32 इंटू 20⁻4। तो जे की वैल्यू आ गई 15.70 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 mm⁻4। नाउ टी एस बाई जे एस इक्वल टू टाउ बाय आर सॉलिड शाफ्ट का, तो टी एस बिकम्स टाउ जे एस बाय R and tau value is given to you in your problem 65. JS is 15.70 into 10⁻3 and R value is diameter by 2, 20/2. It becomes 102.05 into 10⁻3 Newton mm. ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, what torque can be applied if the shaft is replaced by, this is case number 1,
Now come to case number 2. What torque can be applied if the shaft is replaced by a hollow shaft? जो hollow shaft के लिए external diameter d, internal diameter is small d, and if the inner diameter equal to half of its outer diameter, means d is capital D by 2, means 0.5 d, with same cross sectional area of hollow and सॉलिड को रिप्लेस कर रहे हो होलो से, तो सॉलिड इक्वल टू होलो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा दिया प्रॉब्लम में। तो पाई बाई 4 ds स्क्वायर, पाई बाई 4 आउटर डायमीटर स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर स्क्वायर, पाई बाई 4 कैंसल, ds स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी 0.5 डी का होल स्क्वायर, टेक डी स्क्वायर एज कॉमन, इट बिकम्स 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो d इक्वल टू ds स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर अंडर रूट क्या आ जाएगा, d इक्वल टू ds तो आ जाएगा इधर अंडर रूट 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट ये अगर करते हैं हम तो ये आ जाएगा, ds को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर दिया है हमें 20 mm, 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, योर डायमीटर वैल्यू कैपिटल D बिकम्स 23.09, 23.09 mm, तो स्मॉल d क्या आ जाएगा 0.5 d, 0.5 इंटू 23.09, इट बिकम्स 11.545 mm। अब कैपिटल D स्मॉल d आने के बाद j कैलकुलेट करो होलो का, पाई बाई 32 आउटर डायमीटर रेडी टू 4 माइनस इनर डायमीटर रेडी टू 4, मीन पाई बाई 32 आउटर d इज 23.09, 4 minus 11.545 raised to 4, it becomes 26.16 multiplied by 10 raised to 3 mm raised to 4. Now th by jh equal to tau by r, tau for hollow shaft, t होलो का t कैलकुलेट करना है, सॉरी टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो t फॉर होलो शाफ्ट th इक्वल टू टाउ jh डिवाइडेड बाय r, टाउ की वैल्यू गिवन है प्रॉब्लम में 65, जे होलो के लिए आया 26.16 इंटू 10 रेज़ टू 3, आर की वैल्यू आउटर डायमीटर बाई 2 मीन्स 23.09 बाई 2, जो टॉर्क फॉर होलो शाफ्ट बिकम्स 147.28 इंटू 10 रेज़ टू 3 न्यूटन mm. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट फॉर होमवर्क, एक हिंट दे रहा हूँ इस प्रॉब्लम, जी को सी से भी डिनोट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी लिखो या सी लिखो। होलो शाफ्ट ऑफ 1.6 मीटर लॉन्ग, लेंथ है 1.6 मीटर, 1600 mm, आउटर डायमीटर है 42 mm, टॉर्क है हमारा 900 न्यूटन मीटर, मीन्स 900 इंटू 10 रेज़ टू 3 न्यूटन mm, परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ should not be greater than 75 Newton per mm square, and angle of twist should not be greater than 4 डिग्री, मीन्स 4 इंटू पाई बाई 180 जो भी आएगा रेडियन में, और डायमीटर पूछा है, तो ढेर सारे प्रॉब्लम हमने किया है, दोनों से आप डायमीटर कैलकुलेट करो बेस्ड ऑन शियर स्ट्रेस, बेस्ड ऑन एंगल ऑफ ट्विस्ट, और जो लार्जर वैल्यू होगा वो हमारा डायमीटर की वैल्यू होगी, तो आप इजीली कर सकते हो। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसे जे की वैल्यू 1 मिनट, अभी इसको होमवर्क में रखते हैं, इस प्रॉब्लम को नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर के लेक्चर में ये हम डिस्कस कर देंगे। आज के लिए इतना ही।